So good afternoon all of you. All the one especially आज मैं वो बोलूँगी all the one which are following organic chemistry in my classes from the first day. I am thanking you and congratulating you also because the wisdom and the knowledge which you are like still you will gain और जो आपको मिल चुकी हैं पहले they are the best and you will realize this after some time that how the depth of the topic and the subject you have as your other friends are not having. So I am thanking you for subscribing my channel, for sharing my videos to many, and for liking my video. So this is the quote of today's class, and today the topic is so important that I can't say. Like the importance means it will help you in all the aspects for organic chemistry, for your NEET, for your IIT JEE, for your IIT Advanced, for your class 12, for each and everything in board exam, like maybe in 5 years, 3, sometime 4 years, continuously they will ask from this topic. So this is the topic named as, I think all of you please write down the heading of the topic. What is the heading is given? I don't want to revise like whatever we have done. What I will tell you in short, very fast, very fast. Like we have finished the reactions of one type and we are doing the mechanism of that only. If you remember the heading where we have written reactions of haloalkane, which are of three types. The first type was nucleophilic substitution, second was elimination, and third is reaction with metals. So nucleophilic substitution, we have done 13. If you remember, we have done 13 where the nucleophile, one nucleophile replaces the other nucleophile. Only a revision with the product. With NaOH, you are getting alcohol. With water, we got alcohol. With sodium alkoxide, we got ether. With NaI, we got iodoalkane. With ammonia, we got 1 degree amine. With 1 degree amine, we got 2 degree amine. With 2 degree amine, we got 3 degree amine. With KCN, we got nitrile. With AgCN, we got carbylamine. With KNO2, we got nitrite. With AgNO2, we got nitro. With RCOOAg, we got ester. With lithium aluminium hydride, we got alkane. With Rm also, we got alkane or hydrocarbon. So these were 14 nucleophilic substitution reaction which we have covered in detail in depth. Then I have explained to the meaning of embedded nucleophile and what is the like types of it and how CN and NC act as embedded nucleophile. Now today whatever the reaction we have done previously, these 14 reaction, all these reactions are nucleophilic substitution reaction, correct? So now we are following or we are like explaining the mechanism of these substitution reaction, means mechanism of nucleophilic substitution reaction. Okay, so please all of you write down the heading fast, mechanism of nucleophilic substitution reaction, and we will write together. Very important, we can write very important. Okay, so today we will be discussing this. Now remember very well that this type of mechanism is of two types. Like mechanism of nucleophilic substitution reaction is of two types, that is nucleophilic substitution bimolecular and unimolecular. So now we will explain first. Write one, substitution nucleophilic bimolecular. Substitution nucleophilic bimolecular. In bracket you will be writing SN2. Again, substitution nucleophilic bimolecular, that is SN2. S for substitution, N for nucleophilic, and 2 for bimolecular. तो substitution nucleophilic bimolecular पूरा भी एकदम से समझ में नहीं आएगा, स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे समझ में पूरा ऐसा आएगा कि तुम्हें मजा आ जाएगा. मतलब आज के लेसन में रटना नहीं है ना, आज का पूरा समझना है, तो बहुत मजा आता है इसको पढ़ाने में भी और पढ़ने वालों को भी. देखो पहला पॉइंट आप मेरे साथ लिख लो सब लोग, क्योंकि अभी अपन ने काइनेटिक्स नहीं पढ़ी है,
तो अपन को हो सकता है कि अभी समझाने में मुझे थोड़ा ज़्यादा मेहनत लगेगी, क्योंकि काइनेटिक्स पढ़ी होती तो आप इसका मतलब एक सेकंड में समझ जाते हैं। कोई बात नहीं, अभी समझाएंगे। पहले आप एक लाइन लिखो SN2 के लिए। पहला पॉइंट आप लिखेंगे, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड पे अंडरलाइन, ऑर्डर पे अंडरलाइन, काइनेटिक्स पे अंडरलाइन। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। प्लीज अंडरलाइन दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो यहाँ 2 लगा है ना बेटा, ये जो 2 लगा है ये सेकेंड के लिए है। ये 2 इंडिकेट सेकेंड ऑर्डर। काइनेटिक्स का मतलब होता है स्पीड, रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब रिएक्शन की स्पीड या रिएक्शन का होना या रेट काय पे डिपेंड कर रहा है। दिस इज द मीनिंग ऑफ काइनेटिक्स। व्हेन वी से सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, यानी जो हमारा रिएक्शन है वो, उसका जो रेट, रिएक्शन का रेट जानते हो, स्पीड। रिएक्शन के लिए अपन रेट कहते हैं, कार के लिए स्पीड कहते हैं। तो जो रिएक्शन का रेट है यानी स्पीड है, वो डिपेंड कर रही है 2 रिएक्टेंट्स पे। सिंपल अपनी हिंदी की लैंग्वेज में या उर्दू की, के रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन 2 रिएक्टेंट। दिस इज द मीनिंग ऑफ सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। और ये इंडिकेट कर रहा है सिंबल 2 से। इसका मैंने मतलब भी लिखा है, देखो, मीन्स द रेट ऑफ अ रिएक्शन, रेट यानी स्पीड, डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट्स। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। तो भी आपसे पूछे कि सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स क्या होता है, तो उसका मतलब आप यही बताएंगे, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स वो होता है यानी वो रिएक्शन जिसका जो रेट है वो डिपेंड करता है दोनों रिएक्टेंट्स के कॉन्सेंट्रेशन पे। उसका रेट डिपेंड करता है अपॉन दी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट्स। दिस इज नॉन एज सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। आ गई बात समझ यहां तक सबको? बढ़िया, लिख लिया? तो एक दफा फिर से मैं लाइन पढ़ रही हूँ ताकि किसी का छूटा हो तो लिख ले। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स मीन्स the rate of a reaction depends upon the concentration of both the reactants। तो ये मतलब इतना मतलब समझ आया अभी। और S for substitution, N for nucleophilic, 2 for bimolecular। तो bimolecular nucleophilic substitution reaction is an example of second order kinetics। वहां पर रिएक्शन का रेट दोनों चीजों पे डिपेंड करता है। अब ये दोनों चीजें क्या है एक बार समझा रहे हैं अभी, एक बार समझा रहा हूँ। पहले यहाँ से समझा, कोई सा भी रिएक्शन ले लो, कोई सा भी तुम्हें अच्छा लगे। सबसे पहला वाला ले रहे हैं इजी वाला। ये था तुम्हारा, देखो ये रिएक्शन था आपका, ये आपका क्लोरोइथेन था और ये आपका न्यूक्लियोफाइल का मतलब सोर्स था NaOH, यानी OH नेगेटिव असल था बट NaOH पूरा सोर्स था न्यूक्लियोफाइल का। तो CH3 CH2Cl क्लोरोइथेन और NaOH आपका न्यूक्लियोफाइल। रेट ऑफ रिएक्शन दोनों रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है, यानी आपके हेलो अल्केन पे भी कर रहा है, अल्काइल हैलाइड पे भी कर रहा है और आपके न्यूक्लियोफाइल पे भी कर रहा है। अगर दोनों पे कर रहा है तो उसको हम कहेंगे सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स यानी SN2 रिएक्शन। इतनी बात समझ आ गई? चलिए आगे बढ़े। जहां थे अपन ऑलरेडी, कहाँ थे, यहाँ थे अपन। अब मैंने क्या करा है, एक रिएक्शन लिखा है। मैंने पहले नीचे समझा दूं, लिखना कुछ नहीं, कोई भी नहीं लिखेगा, मैं तुम्हें टाइम दूंगी लिखने का, बिल्कुल आप कोई लिखोगे नहीं। देखो ये देखो आप, ये रिएक्शन है, CH3Cl दिख रहा है, कोई से भी नॉर्मल सिंपल बिल्कुल हेलो अल्केन लिया मैंने, क्लोरोमीथेन, CH3Cl ले लिए प्लस OH नेगेटिव। OH नेगेटिव यानी मेरा न्यूक्लियोफाइल, या तो वो NaOH से आया होगा या वाटर से आया होगा, जहां से भी आया होगा उससे हमें फर्क नहीं पड़ रहा, हमें तो न्यूक्लियोफाइल लेना था। तो हमने क्या करा, यकीनन न्यूक्लियोफाइल ने इस न्यूक्लियोफाइल को हटाया, उसके बदले आ गया और ये न्यूक्लियोफाइल Cl नेगेटिव चला गया। अगर आप NaOH लेते तो NaCl निकल जाता। तो सिंपल रिएक्शन है वही वाला जो आपने पहला या दूसरा करा है कि रिएक्शन ऑफ हेलो अल्केन विद NaOH और विद वाटर प्रोड्यूस क्या, अल्कोहल। जब भी हेलो अल्केन NaOH या H2O से रिएक्ट करता है तो क्या मिलता है हमें मिलता है अल्कोहल। तो ये हमें अल्कोहल मिल गया, ये आपने देख लिया अच्छी तरह। अब इसकी हमने 3D में मैकेनिज्म समझाइए। एक्चुअली मैकेनिज्म को 3D में समझाना पड़ेगा। ये जो मैकेनिज्म डिपेक्ट हो रही है ना, मैकेनिज्म हमेशा डिपेक्ट करना पड़ती है, मतलब उसको बनाना पड़ता है डायग्रामेटिकली। तो अभी एक बार कोई बच्चा लिखेगा नहीं, अभी मैंने बोला है क्योंकि समझा रही हूँ मैं। इधर देखो आप ध्यान से, आपको अच्छी तरह पता है, ये देखो आप यहाँ बता रही हूँ मैं। ये कार्बन, ये CH3Cl को मैंने ऐसे लिखा है, आपने लास्ट ईयर पढ़ा हुआ है 11th में कि जब भी अपन किसी भी मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्गेनिक वाला, तो हमारे पास जो सीधी लाइन होती है वो मॉलिक्यूल जो होते हैं ऑन द प्लेन होते हैं,
और ये जो डार्क थिक लाइन होती है इसे सॉलिड वेज कहते थे, सॉलिड WEDGE, सॉलिड वेज। ये हमारा सामने होता है हमारे, ये इन फ्रंट ऑफ द ऑब्जर्वर, और ये जो डैश लाइन है ये बिहाइंड द प्लेन होता है। जैसे अगर ये प्लेन है, ये प्लेन है, तो ये वाला एच और ये वाला एच प्लेन के ऊपर है, जो आपके सामने एच है वो थिक लाइन से है सॉलिड वेज, और जो मेरे सामने है मतलब इधर है जो आपके पीछे है वो डैश वेज से पता चलता है, जिसे हम कहते हैं बिहाइंड द प्लेन। जो इस तरह से मैंने मॉलिक्यूल को करा है, और आपको भी मैकेनिज्म ऐसे ही बताना है जब आएगी। तो ये कार्बन लिया, CH3Cl को लिख रही हूं मैं, एक CH3 ऐसा, एक Cl ऐसा बना दिया, एक हाइड्रोजन बिहाइंड द प्लेन को डैश लाइन से, और एक हाइड्रोजन इन फ्रंट ऑफ द प्लेन को सॉलिड वेज से। इस तरह से मैंने ये कर दिया। अब इसके अंदर आप ध्यान से देखें हो क्या रहा है, आप गौर से एक चीज देखेंगे एंड यू विल रियलाइज दिस इज Cl, करेक्ट, दिस Cl इज द लीविंग ग्रुप, ये जा रहा है, एंड दिस इज योर न्यूक्लियोफाइल जो इसके बदले आएगा। बट हैव यू ऑब्जर्व वेरी स्पेशल थिंग, जहां से Cl जा रहा है OH उस साइड से नहीं आ रहा, OH उल्टी तरफ से आ रहा है, OH बिल्कुल उल्टी तरफ से आ रहा है। मतलब मेरा कोई यहां से कुछ मुझसे बोल रहा है तो मैं कहूंगी नहीं मुझे सुन नहीं आ रहा, मुझे यहां से आ रहा है उल्टी तरफ से, तो बिल्कुल ये बात Cl हटेगा और उसके बदले OH आएगा, लेकिन OH आ रहा है उल्टी तरफ से, फ्रॉम दी अपोजिट डायरेक्शन। ये बात पहली समझ में आई। अब उसके बाद बीच में एक चीज बनी है, इसको इंटरमीडिएट नहीं कहना, इसको ट्रांजिशन स्टेट कहेंगे। मतलब बीच में ट्रांजिशन करते ना अपन, जैसे एक जगह दूसरी जगह जा रहा है तो ट्रांजिस्ट हो रहा है, तो ट्रांजिशन स्टेट ही, दिस इज नॉट द इंटरमीडिएट, क्योंकि इंटरमीडिएट क्या होती है वो वापस डिकम्पोज हो जाती है या आ जाती है वापस, वो नहीं, ये दिस इज ट्रांजिशन स्टेट। तब इसमें देखो क्या दिखा रहा है, ट्रांजिशन स्टेट में तीनों हाइड्रोजन को तो प्लेनर दिखा रहा है, ये प्लेनर में आ गए, देखा डैश वाला भी, सॉलिड वाला भी और नॉर्मल प्लेन वाला सब प्लेन में आ गए हैं, सब ये सीधे आ गए। जैसे ऐसा देखो, ये है एक हाइड्रोजन इधर आपके साइड, एक इधर आ गया, एक इधर, ट्राइगोनल प्लेनर। और इधर से ये दिखा रहा है डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइन का मतलब क्या है, Cl हट रहा है, और ये डॉटेड लाइन का OH आ रहा है, Cl हट रहा है, OH आ रहा है, लेकिन OH कहां से आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है, उस डायरेक्शन से OH नहीं आ रहा। और आप कहोगे मैडम ये सब क्यों कर रहा है, क्यों इतने नखरे कर रहा है, क्यों वहां से नहीं आ रहा, क्यों पीछे से आ रहा है, क्योंकि यहाँ इतना बल्कि ग्रुप है हेलो, OH भी बड़ा है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस आपने पढ़ा है, मैंने भी पढ़ाया था आपको एक दफा, ये चीज आपको याद होगी, स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस अपन लास्ट ईयर से पढ़ना है, हिंड्रेंस यानी रुकावट, स्टेरिक यानी बल्कि ग्रुप, बल्कि ग्रुप की वजह से रुकावट होती है, रुकावट मतलब यहाँ पर रिपल्शन होएगा, Cl और OH साथ नहीं आ पाएंगे, तो वो आराम से उसने कहा क्यों मैं परेशान करूं भाई, मेरे पास जगह इधर से, मैं इधर से आ जाऊंगा, यहाँ से कोई गाड़ी आ रही है, कोई सुन नहीं रहा, कोई आप हॉर्न बजा रहे हो, भाई हट जाओ, नहीं सुन रहे, बदतमीज है, नहीं हट रहे, हट ही नहीं रहे किसी हालत से, तो आप अच्छे अगर इंसान हो तो लड़ोगे नहीं। दो तरह के टाइप, एक आप उठोगे अपनी कार में से निकलोगे और ये शुरू हो जाओगे, और एक जो है नॉर्मल भाई एजुकेटेड पर्सन, वो सोचेगा क्या फायदा इन हंगामों से, अरे उठूं मैं और उठा पीछे डायरेक्शन से मैं आ जाऊँ, वो डरपोक नहीं होगा बट वो हाईली एजुकेटेड होएगा, ताकि वो इस हंगामे से बदले यूं आ गया। आई बात समझ आई। तो जहां से Cl हट रहा है OH उसकी उल्टी तरफ से आ रहा है, यह आपका ट्रांजिशन स्टेट हो गया। ट्रांजिशन स्टेट यकीनन हमेशा तो रहेगा नहीं कि आप हमेशा, जैसे आप इंदौर से भोपाल जा रहे हो तो बीच में आप खाने के लिए पोहा रुक गए, तो वो आपका ट्रांजिशन स्टेट है, आप वहां थोड़ी बैठे रहोगे पूरी जिंदगी, आपको या तो इंदौर जाना है या इंदौर से आ रहा है तो आपको भोपाल पहुंचना है, वो आपका सेंटर है, ये आपका इंदौर है, ये आपका भोपाल है, और ये आपका बीच में जहां पोहा खाते हैं, ये ट्रांजिशन स्टेट है। तो ट्रांजिशन स्टेट यकीनन अनस्टेबल होता है वैसे भी, लेकिन ये वाला ट्रांजिशन स्टेट तो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है, मैं पूरा समझा रही हूँ, बाद में लिखेंगे अपन। ये ट्रांजिशन स्टेट बहुत अनस्टेबल क्यों है, तुम हैरत करो कि मैडम ये इतना अनस्टेबल क्यों हो गया, ये इसलिए इतना अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट है, आप ध्यान से देखें, इस कार्बन पे 5 बॉन्ड हैं। कभी आपने सुना है, क्लास 10 से अपन पढ़ रहे हैं कि कार्बन की टेट्रावैलेंसी, उसकी अच्छी बातें सुन रहे हैं, स्पेशलिटी सुन रहे हैं कि कार्बन इज टेट्रावैलेंट, और ये वाला कार्बन कौन सा है, पेंटावैलेंट, तो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है। फटाफट ये ट्रांजिशन स्टेट जो है ब्रेक डाउन होगा, टूटेगा, और टूटने के बाद ये प्रोडक्ट बनेगा। अब इस प्रोडक्ट में देखो, आप ध्यान से देखना, ये H इधर जा रहा है तो ये H उधर जा रहा है, मतलब सब चीजें उल्टी हो गई, Cl यहाँ था, इसके बदले उल्टी तरफ से OH आ रहा है, तीनों H इस साइड हो गए, मतलब ये मिरर की तरफ, मिरर इमेज। अगर ये आप जैसे मान के चलो मिरर रखा है तो ये एक्चुअल अगर फोटो है तो ये इसका इमेज आ रहा है, बिल्कुल ये दोनों मिरर इमेजेस हैं।
और बस ये Cl नेगेटिव जो लीविंग ग्रुप था आपका ये बाहर चला गया। तो ये जो Cl नेगेटिव है ये क्या है, ये लीविंग ग्रुप है, ये चला गया बाहर। बाहर जाने वाले को क्या कहते हैं, लीविंग ग्रुप। तो दिस इज योर लीविंग ग्रुप। और आपका ये डिपिक्ट करिए, बढ़िया मैकेनिज्म है ये, मजा आ गया इसके अंदर, मुझे तो बहुत आया, आपको भी यकीनन आया होगा कि सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स से ये SN2 रिएक्शन, इसका जो रेट है वो डिपेंड कर रहा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल दैट इज OH नेगेटिव as well as halo alkane. In for both it depends, and when you draw the mechanism you have to show the 3D. You are not supposed to write CH3Cl, you have to show the 3D representation indicating the solid phase and the dash phase and the planes, the molecule which are on the plane, and draw it very carefully. And below this you have to write down transition state. Now you can start writing. अब बना लो जल्दी से, you can start. So this is your transition state. This is your substrate. Substrate यानी reactant होता है. It is tetrahedral. जो आपका substrate है वो tetrahedral है. This is your product. This is also tetrahedral. This is also tetrahedral. So your substrate is tetrahedral. Your product is tetrahedral. But your transition state is planar. Your transition state is what? It is planar. Is it clear? So please draw it, and whatever I have written you have to write. नीचे नीचे लिख लो, जैसे substrate tetrahedral, product tetrahedral, बीच के जो ट्रांजिशन स्टेट है वो क्या है, प्लेनर, बाहर जो निकला वो क्या है, लीविंग ग्रुप, और जो स्टार्टिंग में आया दैट इज व्हाट, दैट इज द न्यूक्लियोफाइल. व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल? The species carry a negative charge and it replaces the group which is already acting as a nucleophile. So I hope this is very clear to you. You please depict it and write it and represent it as it is given. And after writing it, you have to write down below it, means the reaction is between CH3Cl plus OH negative gives CH3OH plus Cl negative. Hurry up children. Without wasting a minute of time, I want that you will draw it, and I will give you 1 minute to finish this. Hurry up. So a very important mechanism, SN2. If it is asked for any other molecule, आप घबराओगे नहीं, जैसे कोई कहेगा नहीं हम तो C2H5Cl का पूछ रहे हैं, तो कोई टेंशन नहीं लेना, एग्जाम में आ गया C2H5Cl का, तुम जानते हो, अगर सपोज C2H5Cl का आ गया तो कौन सी परेशानी आई, CH3 CH2Cl होता है ना, तो एक H के बदले CH3 लग जाएगा, बाकी दो H तो वैसे ही रहेंगे, Cl भी रहेगा, ओनली इन प्लेस ऑफ 1 हाइड्रोजन आपका CH3 लग जाएगा. दिस इज ओनली द डिफरेंस, अदरवाइज इट इज सेम. सो आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा जो मैंने समझाया है, जो मैंने पढ़ाया है, ये करेक्ट चिल्ड्रन. सो वेरी गुड. नाउ अब ये अपन ने लिख लिया, अब यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, देखो एक लाइन लिख दी हमने, वही जो समझाया उसको लिखेंगे भी अपन. देखो पर्पल लाइन क्या लिख कह रही है, पर्पल लाइन हमारी कह रही है here OH negative which is a nucleophile, अभी समझ लो, interact with methyl chloride, so Cl bond will break and new bond is formed between carbon and nucleophile. here OH negative मतलब क्या मतलब सेम वही बात. यहाँ पर OH negative कह रहा है एक न्यूक्लियोफाइल है जो कि मिथाइल क्लोराइड से रिएक्ट कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है, CCl बॉन्ड टूट रहा है और C और न्यूक्लियोफाइल यानी OH बॉन्ड बन रहा है. ये C, ये डॉटेड लाइन बता रही है कि टूट रहा है, ये डॉटेड लाइन बना रही है कि बन रहा है. ब्रेकिंग फॉर्मेशन, डॉटेड लाइन इंडिकेट्स ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स. ठीक है, तो अब आप ये लिख लो पर्पल लाइन से जो लिखा है, here OH negative which is a here OH negative which is a nucleophile, OH negative which is a nucleophile interact with methyl chloride, interact with methyl chloride, OH negative which is a nucleophile interact with methyl chloride, so CCl bond will break and new bond is formed. CCl bond
टूटेगा और नया बॉन्ड बनेगा। नया बॉन्ड किसके बीच में बनेगा? बिटवीन कार्बन एंड न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल क्या है, इस वाले मतलब इस पर्टिकुलर एग्जांपल में आपका न्यूक्लियोफाइल क्या है? आपका इस पर्टिकुलर एग्जांपल में न्यूक्लियोफाइल है OH नेगेटिव। ठीक है, अब देखो इसके बाद मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं एंड यू शुड बी वेरी श्योर दैट व्हाट आर द पॉइंट्स व्हिच वी आर डिस्कसिंग ऑन दिस मैकेनिज्म। फर्स्ट आई विल रीड दिस लाइन, ब्लू वाला। ब्रेकिंग ऑफ अ बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू बॉन्ड अकर साइमल्टेनियसली इन वन स्टेप। यानी क्या? इधर देखो, दो स्टेप नहीं चाहिए। बॉन्ड का टूटना, ये एक ही स्टेप दिख रहा है, बॉन्ड का टूट जाना और न्यूक्लियोफाइल का कार्बन से जुड़ जाना, ये सब एक साथ हो रहा है। साइमल्टेनियसली का मतलब एट द सेम टाइम हो रहा है और एक स्टेप में हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं। इसके बाद वाली जो मैकेनिज्म है वो 2 स्टेप में होती है, तो बच्चे को क्या लगता है, कभी कभी जो कंफ्यूज होता है, मैं इसलिए समझा रही हूँ। यहाँ पर 2 लिखा है तो बच्चे को क्या लगता है कि ये 2 स्टेप में होगी। दिस 2 इज फॉर सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, मीन द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट्स, बट द मैकेनिज्म अकर इन वन स्टेप। ये आपके सामने डिपेक्ट हो रहा है, ये सब एक स्टेप में हो रहा है, ये टूटना और ये लग जाना। सो व्हाट इज द, ये वाली लाइन लिखे अब आप। Breaking of a bond and formation of a new bond occur simultaneously, simultaneously पे अपन अंडरलाइन करेंगे, in one step, एक स्टेप के अंदर। तो ब्रेकिंग ऑफ अ बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू बॉन्ड, पुराना बॉन्ड को टूट जाना और नए बॉन्ड का बन जाना अगर साइमल्टेनियसली एक साथ होता है इन वन स्टेप। वन स्टेप है, गहरा गहरा अंडरलाइन बना लो अपनी कॉपी में। ठीक है बेटा, एक स्टेप में हो रहा है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या लिखा है, ये जो है मैं तुम्हें अभी समझाया था यहाँ पर कि दिस इज नॉट योर इंटरमीडिएट चिल्ड्रन, इट इज योर ट्रांजिशन स्टेट। बिकॉज ये एक ही स्टेप है ना, यहाँ कोई अलग अलग चीजें नहीं बन रही हैं कि पहले इंटरमीडिएट बना फिर इंटरमीडिएट ब्रेक हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। यही स्टेप में इधर से मतलब यहाँ बना के बता दिया उसको, बट यहीं से ये हट रहा था, यहाँ से आ रहा था, तो यहाँ पर इंटरमीडिएट नहीं बन रहा बल्कि ये क्या है, ट्रांजिशन स्टेट है बस। तो राइट द नेक्स्ट लाइन, ये वाली, ये नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड, नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड, यहां पर इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड। ठीक है, ओके। क्यों लिखा अपन ने, कहा कि नो इंटरमीडिएट क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि वही बात, एज द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड न्यूक्लियोफाइल स्टार्ट फॉर्मिंग एंड the bond between carbon and leaving group weakens। मतलब जैसे ही यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आके लगना शुरू होगा, जैसे ही न्यूक्लियोफाइल आके यहाँ पर लगेगा ऐसे ये बॉन्ड वीक होके बाहर चला जाएगा, Cl, है ना। तो एज द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड OH स्टार्ट फॉर्मिंग इन द सेम वे कार्बन और हेलो एटम का बॉन्ड जो है वो वीक हो जाएगा। तो राइट दिस लाइन, एज नेक्स्ट स्टार, as the bond between carbon and nucleophile, ये वाला, as the bond between carbon and nucleophile starts forming, ठीक है, जैसे ही बॉन्ड कार्बन और न्यूक्लियोफाइल का बनना शुरू होगा, एंड द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड लीविंग ग्रुप वीकेन। ठीक है, तो जैसे ही कार्बन और न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड बनेगा ऐसे ही आप देखोगे कि कार्बन और लिविंग ग्रुप का बॉन्ड वीक हो जाएगा। और फिर वही बात जो यहाँ लिखी थी अपन ने, वहां लिखी है वो यहाँ पर अपन ने फिर से अलग से लाइन में लिख दी है। यहाँ पर लिखवाया था मैंने, आपको खुद दिख रहा है, मेरे लिखवाने से कुछ नहीं होता है। sp3 हाइब्रिडाइज है, यकीनन 4 बॉन्ड है, टेट्राहेड्रल है। प्रोडक्ट भी आपका sp3 हाइब्रिडाइज है, 4 बॉन्ड है तो टेट्राहेड्रल है, तो यही बात दिख रहा है। और जो ट्रांजिशन स्टेट है वो क्या है, प्लेनर। इसको अलग से लाइन में लिख भी लो यहाँ से। सबस्ट्रेट यानी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर टेट्राहेड्रल, सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट आर टेट्राहेड्रल है, सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट दोनों टेट्राहेड्रल है, तो सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट आर टेट्राहेड्रल। ट्रांजिशन स्टेट इज प्लेनर, ठीक है, अभी देख लिया अपन ने, ट्रांजिशन स्टेट इज प्लेनर। क्या होता है वहां ट्रांजिशन स्टेट में, तीन अभी बताया मैंने, तीनों हाइड्रोजन प्लेनर है, मतलब तीनों हाइड्रोजन सेम प्लेन में है, एक ही मतलब एक ही प्लेन में है।
एंड न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप पार्शियली अटैच है। ये जो अपन ने डॉटेड लाइन बनाई है ना, ये डॉटेड लाइन का मतलब ही है पार्शियली अटैच, मतलब मजबूत इस जैसा बॉन्ड नहीं है, पार्शियल अटैच है, हटना चाह रहा है, पार्शियल अटैच है, लगना चाह रहा है, अभी लगा नहीं है, यहां आके फिर ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आ गया। तो क्या कहा, सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट आर टेट्राहेड्रल, ट्रांजिशन स्टेट इज प्लेनर इन विच all the 3 हाइड्रोजन एटम आर इन प्लेन इन द सेम प्लेन, Cl बॉन्ड निकला है और OH बॉन्ड लग रहा है। तो क्या लिखा अपन ने, ये देखो, ये ट्रांजिशन स्टेट इज प्लेनर, इन इट all the 3 CH bonds, in it all the 3 CH bonds are in the same plane, सब एक ही प्लेन में है, एज वेल एज अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल एंड लीविंग ग्रुप आर पार्शियली अटैच्ड टू द कार्बन। लिख लो ये पूरा। ट्रांजिशन स्टेट इज प्लेनर, इन इट ऑल द 3 CH bonds are in the same plane as well as attacking nucleophile and leaving group are partially attached to the carbon। ये दोनों जो है पार्शियली अटैच है। अगर पार्शियली अटैच है तो कैसे हमने समझाया, बाय डॉटेड लाइन। ओके बेटा, सो आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब इसके बाद बड़ी मजे की चीज आ रही है, अभी एक मिनट पेन रखो, समझो मैं क्या समझा रही हूँ, क्या वो मजे की चीज समझा रही हूँ, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बट उसको मैंने एक मजे में कर दिया है, मतलब उसको एक मैंने इंटरेस्ट लाना चाह रही हूँ आपके अंदर। नेक्स्ट जो लाइन है, अभी लिखना नहीं, समझो, इट अकर्स बाय इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। इन्वर्जन यानी जहां पर Cl था, OH उसके उल्टी साइड से आया, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। इसकी इतनी बढ़िया एग्जांपल दी है एनसीईआरटी ने, आई लव दैट एग्जांपल। आजकल आप सब जान रहे हो कि रेनी सीजन है, हवाएं चलती हैं बारिशों में, अपन बाहर निकले, पता चला बहुत तेज बारिश हो रही है, और यहाँ पर इत्तेफाक से हो भी रही है। तो बहुत तेज बारिश हो रही है सपोज, और मैं अम्ब्रेला या कोई भी अम्ब्रेला लिया खड़ा है और निकल गया घर से अपने। आज जब वो घर से अपने निकला है तो जरा सा वो चला था कि एकदम से आंधी जैसी आने लगी। जब आंधी जैसी आने लगी तो उसको जो अम्ब्रेला, कभी तुमने देखा ऐसा अम्ब्रेला यूं होता है ना, अम्ब्रेला कभी कभी ऐसा हो जाता है, यानी जैसे अम्ब्रेला अपना नॉर्मली ऐसा होता है। यकीनन मैं एक अम्ब्रेला बना रही हूँ जो कि मैं ड्राइंग में बहुत ही बुरी हूँ, मुझे नहीं आती ड्राइंग, बट मैं बना रही हूँ, जब भी कोशिश कर रही हूँ कि अम्ब्रेला है मेरा, दिस इज माई अम्ब्रेला, जो कि बिल्कुल भी अम्ब्रेला नहीं लग रहा है, बट अम्ब्रेला है सपोज। तो मेरा जो अम्ब्रेला है, सॉरी, ये बिल्कुल अम्ब्रेला नहीं लग रहा है, ये तो एक ट्री लग रहा है। मैं बनाऊंगी अम्ब्रेला तो आई हैव टू ड्रॉ अम्ब्रेला। दिस इज सपोज द दिस, और ये मैंने ऐसा बना दिया, ठीक है, दिस इज माई अम्ब्रेला। ओके, जैसे भी हो तुम समझो, दिस इज माई अम्ब्रेला। अब अगर मैं बहुत तेज विंड में खड़ी हुई हूँ तो मेरी अम्ब्रेला ऐसी हो गई, उल्टी हो गई, जस्ट मेरी अम्ब्रेला उल्टी हो गई, इसमें पानी भर गया यहाँ पर आके। तो दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल विच दे हैव गिवन। इनका कहना यह है कि जो SN2 मैकेनिज्म है वो इट अकर बाई इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। कार्बन का जो कॉन्फिगरेशन है वो इस तरह से इन्वर्ट हो जाता है, इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, जैसे कि एक अम्ब्रेला टर्न इनसाइड आउट व्हेन कॉट इन अ स्ट्रॉन्ग विंड। दिस एग्जांपल इज गिवन बाय एनसीईआरटी एंड वी आर राइटिंग इट। तो देखो क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, पढ़ो सब लोग। इट, इधर हम पढ़ने पे लिखेंगे, इट अकर्स बाय इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, कॉन्फिगरेशन ऑफ कार्बन inverts in such a way as an umbrella is turned inside out when caught in a strong wind। ये रखा दिया, आया बात समझ? तो अब ये वाला पॉइंट लिखोगे, क्योंकि आपको ये बात शुरू से पता है कि OH जो है वो Cl जहां लगा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में गया है, तो इसलिए आपको कोई टेंशन नहीं है, आपको ये बात शुरू से पता चली है कि ये ऐसा हो रहा है ना। तो लिख लो, it occurs by inversion of configuration, इन ब्रैकेट ये इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन पे 2-3 अंडरलाइन लगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। जेई नीट और बोर्ड हर जगह ऑब्जेक्टिव में ये सब क्वेश्चन बहुत दफा आ चुके हैं कि SN2 का ऐसे होती है, SN1 का ऐसे होती है सब। तो इट अकर्स बाय इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, इन ब्रैकेट यू राइट कॉन्फिगरेशन ऑफ कार्बन, configuration of carbon inverts in such a way, configuration of carbon inverts in such a way
as an umbrella is turned inside out, is turned inside out when caught in a strong wind. As an umbrella is turned inside out when caught in a strong wind. This is the meaning of inversion of configuration. Mean it occurs by inversion of configuration. I hope कि सारे पॉइंट्स अभी तक के कोई भी किसी को डाउट नहीं होगा, सबको सब कुछ अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। अब वो जो चीज समझाई थी वही अपन लिख रहे हैं। अब ये दफा पढ़ देते हैं कि ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल है, पहले बता चुकी हूं मैं। क्यों अनस्टेबल है? क्योंकि वैसे भी अनस्टेबल होता है, लेकिन यहाँ पर कैन नॉट बी आइसोलेटेड। ये सब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आते हैं। ऐसी चीजें आ जाती है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में कि आप सोच भी नहीं पाओगे बिटवीन द लाइन्स कि क्या SN2 में ट्रांजिशन स्टेट को आइसोलेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। वो वहीं से हट रहा है, वहीं से आ रहा है, वो तो बिल्कुल अनस्टेबल है। और एक और लाइन उसको प्रूव करने के लिए कि अनस्टेबल है, एज हेयर कार्बन एटम इज अटैच्ड टू 5 एटम्स एक साथ साइमल्टेनियसली। तो प्लीज राइट डाउन दिस इन द न्यू। तुम लोग नंबर दे रहे हो, नंबर 2 स्टार लगा लो तो स्टार लगाओ, दिस इज योर विश। ट्रांजिशन स्टेट इज अनस्टेबल, transition state is unstable and cannot be isolated. Transition state is unstable and cannot be isolated as here carbon atom is attached as here carbon atom is attached to 5 atoms simultaneously, is attached to 5 atoms simultaneously. I hope it is clear to all the one. Or if you doubt it, you can write in the comment box. I will explain and I will clear your doubt. अब जैसे अपन यहाँ देख रहे थे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन कार्बन का इन्वर्ट हो जाएगा, तो हमें लगा कि हम ऐसा भी एक क्वेश्चन डाल दें कि कौन किसी बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा हो कि मैडम ये कॉन्फ़िगरेशन हमें पता ही नहीं आप क्या लिख रहा हो। तो एक क्वेश्चन अपन ने डाला है, आप सब वो क्वेश्चन लिखेंगे मेरे साथ। ये है क्वेश्चन आपके सामने। What do you mean by configuration? Please write down the question. What do you mean by configuration? Configuration से आप क्या समझते हो? पहले लिख लो डेफिनेशन, में समझाऊंगी फिर। पहले अपन लोग सब सारे डेफिनेशन लिख रहे। स्पेशियल, SPATIAL, स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स अराउंड कार्बन इज कॉल्ड its configuration. Okay, so please write down what do you mean by configuration. Again write on the line the answer is spatial arrangement of functional groups around carbon is called its configuration. Okay, spatial arrangement of functional groups around carbon is called its configuration. क्या मतलब? ये मतलब ये चीज बता रहे किस तरह से ग्रुप लगे हैं कार्बन, ये कार्बन है बीच में, कार्बन के आसपास किस तरह से ग्रुप लगे हैं, इसे कहते हैं स्पेशियल अरेंजमेंट। स्पेस, स्पेशियल कम फ्रॉम द वर्ड स्पेस। स्पेस के अंदर कैसे ग्रुप्स लगे हैं कार्बन के आसपास, यानी अरेंजमेंट ऑफ सिंपल अपनी लैंग्वेज है, बट वो है केमिस्ट्री की लैंग्वेजेस काफ़ी पर्टिकुलर होती हैं। लोगों को जिन्होंने निकाला है वो बड़ी पर्टिकुलर लैंग्वेज यूज करते हैं। तो अपन तो यूँ भी समझ सकते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स और ऑल द 4 ग्रुप्स अराउंड कार्बन एटम इज नॉन एज स्पेशियल अरेंजमेंट। दिस इज द मीनिंग ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। किस तरह से वो कॉन्फ़िगरेशन था और अब किस तरह से हो गया, उलट गया है पूरा। मतलब सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट आपस में मिरर इमेजेस लग रहा है। एक मिरर इमेज जो होती है ना, इमेज दिखता है मिरर में, वैसा। सो ये हो गया अपना, कहाँ तक गया था? Yes. So this is the answer of what do you mean by configuration? Spatial arrangement of functional groups around carbon atom। और जिसको भी अगर जरा सा अलग से कुछ लिखना है तो मतलब आप ये लिख लो अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स अराउंड कार्बन। सिंपल ये मतलब वही है, अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स अराउंड कार्बन का मतलब कॉन्फ़िगरेशन होता है। नेक्स्ट आ जाइए। ये जैसे मैंने कितना बढ़िया डिपेक्ट कर दिया अपन ने, ये बढ़िया हमने डिपेक्ट करा है इसीलिए ताकि आप समझ पाए।
यू शुड रिमेंबर कि आप पढ़ क्या रहे हो। तो जैसे ऐसी मैंने अलग से दो बना दी, ये तो मैंने वो OH के नहीं बनाए हैं, ये तो मैंने ऐसी दो बना दिए। ये जो Br ये कंपाउंड है, इसको भी अपन अलग अलग ले लो। जैसे एक कार्बन है, एक Br है, उसमें एक H है, एक I है, एक Cl है। इसे कहते हैं कार्बन, मतलब कायरल कार्बन। अभी पढ़ेंगे आगे वाले लेसन में, अपन ये सब पढ़ेंगे। मतलब कायरल या स्टीरियो कार्बन वो होता है जिसके आसपास 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे होते हैं। अभी हम ये नहीं समझा रहे कि स्टीरियो क्या है, क्या है, हम तो ये समझा रहे हैं कि मिरर इमेज क्या होती है। ये आपके पास एक कंपाउंड है, ये मान चलो A है, ये आपने एक आईना लगा दिया, मिरर लगा दिया। जब ये मिरर में दिखेगा तो Br तो वैसे ही दिखेगा, I यूं है तो ये उल्टा दिखेगा, Cl यूं है तो Cl इधर दिखेगा, H इधर है तो H उधर दिखेगा। तो A और B जो है वो मिरर इमेजेस हैं। व्हाट आर A एंड B? मिरर इमेजेस है सेम कंपाउंड के। दे डिफर इन स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स अराउंड कार्बन। आप कहोगे मैडम वहां तो OH था। मैं वो चीज नहीं कह रही कि मिरर इमेजेस, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ आपको कि वो मिरर इमेजेस जैसा हो गया मॉलिक्यूल। मिरर इमेज पूरा नहीं है, क्योंकि वहां पर मिरर इमेज अगर होता तो यहाँ पर OH के बदले Cl आता ना, Cl आता, लेकिन मिरर इमेज जैसे बिहेव कर रहा है। यानी पूरा ये तीनों H इधर दिख रहे थे तो आईने में उधर दिखने लगे, और Cl के बदले तो OH आ गया, नहीं आता तो ये Cl इधर आ जाता। तो ये मैं बता रही हूँ कि जो SN2 मैकेनिज्म है, जो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन से होती है, ये इसके अंदर जो सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट है वो आपस में मिरर इमेज है। जैसे कि ये डिपिक्ट करके एग्जाम्पल बताइए, समझ गए? तब ये एग्जाम्पल बना लो जल्दी से आप अपनी कॉपी में, फास्ट चिल्ड्रन प्लीज थोड़ा जल्दी करना। हो गया? अब यहां पर जो आपने ये लिखा है, ये बना है, इसको मिरर बना लो, आप मिरर लिख लो उसके नीचे। नाउ यू कैन राइट फ्रॉम न्यू लाइन, ये A और B, स्ट्रक्चर A एंड B आर द मिरर इमेज ऑफ द सेम कंपाउंड। सेम कंपाउंड के ये मिरर इमेजेस हैं, ठीक है। ठीक है, तो A एंड B are mirror images of the same compound. They differ in spatial arrangement of groups around carbon. They differ in, काय में differ हो रहा है in spatial arrangement of groups around carbon। मतलब सिर्फ ग्रुप्स का अलग अलग दिखना, मतलब इधर दिख रहा है उधर दिख रहा है, ये मतलब हुआ। इसे कहते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो गया, यानी मिरर इमेजेस में कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो जाता है। और बिल्कुल ऐसे ही बिहेव कर रहा है SN2 का मैकेनिज्म का सबस्ट्रेट एज वेल एज द प्रोडक्ट। हो गया? अब नेक्स्ट चीज आ रहा है, एक और चीज अभी जो बताई थी मैंने, समझा दो, फिर अपन लिखेंगे। जस्ट अ मिनट। देखो अपना फिर से वो आ गया, ये वाली, मतलब यही मेन मैकेनिज्म है ना आपकी। इसी के ऊपर अपन हर पॉइंट इसी से देख के और इसी से लिंक होकर अपन पॉइंट को समझा रहे हैं। अब क्या समझाना चाह रही थी मैं यहाँ पर? यहाँ मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ बेटा कि जैसे आपसे जब न्यूक्लियोफाइल आएगा, है ना, वही जो अभी शुरू में समझाई थी, जब न्यूक्लियोफाइल आएगा तो उसको ऑलरेडी हेलो अल्केन पढ़ लो अभी, तो ऑलरेडी हेलो एटम दिखेगा। हेलो एटम काफी बड़ा होता है, तो न्यूक्लियोफाइल परेशान होगा आने में, क्योंकि हेलो एटम ऑलरेडी लगा हुआ है। अब ये भी से दूर दूर नहीं है, सब पास पास है। तो हेलो एटम से के मतलब रिपल्शन से, वो भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, बोथ आर न्यूक्लियोफाइल, बोथ आर नेगेटिवली चार्ज, तो उसके रिपल्शन से बचने के लिए वो उल्टी तरफ से आ रहा है। मतलब क्या हुआ कहने का? मतलब ये हुआ जितना ये ग्रुप मतलब छोटा होएगा, मतलब छोटा मीन जितना ये कार्बन के आसपास जो 4 ग्रुप है वो बल्कि नहीं होंगे, उतना ही न्यूक्लियोफिलिक अटैक आसानी से होगा। करेक्ट? क्यों होगा आसानी से? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को जगह मिल जाएगी आके लग जाने में। ये चीज अब लिखवा रही हूँ, ये चीज समझा रही हूँ। अभी समझा भी दी थी मैंने आपको, फिर से मैं लिखवा रही हूँ, समझा रही हूँ। ये देखो देख लो क्या लिखा है, फिर अपन लिख लेंगे साथ। देखो क्या लिखा है मैंने, इन दिस रिएक्शन the approach of nucleophile takes place to that carbon atom having a leaving group। जब न्यूक्लियोफाइल आ रहा है उस कार्बन में, तो उस पर लीविंग ग्रुप हटा नहीं अभी है। सो प्रेजेंस ऑफ बल्कि बड़े बड़े ग्रुप्स अराउंड कार्बन एटम के आसपास हिंडर रुकाएंगे द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। जैसे मान के चलो कहीं घर बन रहा है, जैसे यहाँ बहुत घर बन रहा है,
अब घर बन रहा है तो हम गिट्टी पड़ी हुई है, लकड़ी पड़ी हुई है, सब कुछ पड़ा है, मिट्टी पड़ी है। अब अगर कोई गाड़ी आ रही है, गाड़ी सीधी आ रही, बढ़िया रोड से उस पर आ रही, एकदम से ये सब जब देखा तो गाड़ी परेशान हो गई, हिंडर्ड हो गई, नहीं निकल पाई, तो उसने पूरा यू टर्न लिया, यू टर्न लेके वापस मुड़ गई, इन्वर्ट हो गई वो। बस ऐसे समझो कि जब न्यूक्लियोफाइल आ गए तो उसको जगह मिलना चाहिए ताकि आगे वो लगे। अगर बड़े बड़े ग्रुप होंगे तो न्यूक्लियोफाइल का आना और लगना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए बल्कि ग्रुप से अवॉइड करता है SN2 मैकेनिज्म। तो अब लिख लो आप, इन दिस रिएक्शन द अप्रोच ऑफ न्यूक्लियोफाइल in this reaction the approach of nucleophile takes place to that carbon atom having a leaving group, है ना। in this reaction the approach of nucleophile takes place to that carbon atom having a leaving group. So presence of bulky groups, बड़े बड़े ग्रुप्स अराउंड कार्बन एटम हिंडर, रुकाएगा, द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। प्रेजेंस ऑफ बल्की ग्रुप्स अराउंड कार्बन एटम हिंडर द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। हो गया, समझ गए यहां तक। अब इसलिए मैं आपको एक चीज समझाऊंगी, एक मिनट। हेंस, देखो क्या लिखा है, हेंस मिथाइल हेलाइड, मिथाइल हेलाइड में क्या होता है, 3 हाइड्रोजन होता है, एक हेलो होता है, रिएक्ट मोर रैपिडली इन SN2 रिएक्शन एज देयर इज ओनली 3 हाइड्रोजन एटम। कोई भी अल्काइल ग्रुप नहीं है, Cl के साथ 3 हाइड्रोजन है, तो सबसे बेस्ट हेलो अल्केन अगर कोई पूछता है आपसे जो रिएक्ट करेगा SN2 में, तो आप कहोगे मिथाइल हेलाइड। Methyl halide are the best to react in SN2 mechanism. Why? Because they have no bulky group. Around carbon 3 hydrogen atoms are present. Is it clear to you? So please remember this. अब जैसे अगर मैं आपको कुछ कंपाउंड बना के बताऊंगी, अभी रुक जाओ। While, देखो क्या लिखा है, while 3 डिग्री हेलाइड, अभी लिख लो, मैं बना के बताऊंगी इसको। Hence methyl halide react more rapidly in SN2 reaction as there is only 3 hydrogen atom, while 3 डिग्री हेलाइड, ये कितना खतरनाक है, 3 डिग्री हेलाइड, 3 डिग्री हेलाइड जानते हो, हेलो एटम जिस कार्बन से जुड़ा है उसमें वो 3 अल्काइल ग्रुप से जुड़ा है। हेलो एटम जिस कार्बन से जुड़ा है वो 3 अल्काइल ग्रुप से जुड़ा है, मतलब कितना खतरनाक, वहां पर स्टेरिक हिंडर से पत्थर भी पड़ा है, गिट्टी भी पड़ा है, लकड़ी भी पड़ा है, रेत भी पड़ा है, सब कुछ पड़ा है। तो 3 डिग्री हेलाइड्स आर लीस्ट रिएक्टिव, सबसे कम रिएक्टिव है। 3 डिग्री हेलाइड्स are least reactive as 3 bulky groups hinder, रुकाएगा, the approach of nucleophile. 3 degree halides are least reactive as 3 bulky groups hinder the approach of nucleophile. जैसे कि 3 डिग्री का एग्जाम्पल बताऊं, जैसे मान के चलो ये तुम्हारा हेलो अल्केन था, आपने सब पढ़ा हुआ है पहले, इसलिए आपको कोई टेंशन नहीं हो रहा होगा। ये Cl है, ये हटेगा जब न्यूक्लियोफाइल आएगा। अरे न्यूक्लियोफाइल आने में तो कितना डर रहा है, घबरा रहा है वो, ये भी सब रिपेल कर रहा है, उसको रिपल्शन है, बड़े बड़े ग्रुप लगे हैं, कहाँ आएगा वो, है ना, नहीं आ पाएगा वो। इसलिए अपन को कौन सा हेलो अल्केन या अल्काइल हाइड SN2 में होता है, जहां पर हिंड्रेंस कम हो, जहां पर बल्कि ग्रुप्स नहीं हो, तो इस तरह से 3 डिग्री सबसे बुरा है, मिथाइल हेलाइड सबसे अच्छा है, फिर 1 डिग्री आ जाएगा। मिथाइल हेलाइड को भी अब नई केमिस्ट्री में 1 डिग्री कहते हैं, वरना 1 डिग्री का सब बेस्ट एग्जाम्पल ये है, जैसे CH3 CH2Cl, ये हेलोजिस कार्बन जोड़ा है वो 1 से जोड़ा है, और इससे अच्छा कौन है, CH3Cl जो अभी पढ़ा, और फिर इसके बाद कौन है, ये वाला जो आप लोगों को बहुत दफा पढ़ाया हुआ था, और आप लोग नाम लिख के जल्दी बताएंगे, इसका कॉमन नेम जल्दी बता देंगे, अगर नहीं बता रहे हैं तो मतलब आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, कॉमेंट्स में जल्दी से आप इसका, इस वाले का, ये वाले का डालेंगे, 3 बीच में से हटाया, यस, आइसोप्रोपाइल जो कि 2 डिग्री है, तो सबसे अच्छा ये, फिर ये सबसे बुरा ये, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े बल्कि ग्रुप हैं। तो अगर कोई तुमसे पूछता है, ये सब क्वेश्चन सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन के आ चुके हैं और आते रहते हैं, अगर कोई हमसे पूछता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बताइए अल्काइल हेलाइड की टुवर्ड्स व्हाट SN2 मैकेनिज्म, तो आप क्या कहोगे, मिथाइल क्लोराइड ग्रेटर देन 1 डिग्री, ग्रेटर देन 2 डिग्री, ग्रेटर देन 3 डिग्री, मतलब 3 डिग्री सबसे
बुरा, सबसे बुरा कौन है हमारा 3 डिग्री है। तो अपन ने यही लिखी है बात। While 3 degree halides are least reactive as 3 bulky groups hinder the approach of nucleophile। आई बात समझ? अब आगे बढ़ जाइए। तो अब अपन ने क्या लिखा है? अब अपन ने ये लिखा है, लास्ट चीज अपन ने लिखी है इसके अंदर। सो व्हाट यू हैव रिटन? सो द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड टुवर्ड्स SN2 इज, इसमें एक चीज और लिख देती हूं मैं, यहाँ पर एक मिनट रुक जाओ, इसको जरा सा अपन CH3Cl भी लिख देंगे ना, सही रहेगा। अपन वो लिख के और फिर ये करेंगे ताकि अपना रूल कंप्लीट हो जाए। सो यहाँ से ऐसे लिखो, सो जब तक ये लिखो, सो द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल टुवर्ड्स SN2 इज CH3Cl कर दो, कोई सा भी हेलो अल्केन, ग्रेटर देन 1 डिग्री विच इज ग्रेटर देन 2 डिग्री which is greater than 3 degree. Order of reactivity of alkyl halide towards SN2 is CH3Cl greater than 1 degree, greater than 2 degree, greater than 3 degree. बहुत बहुत अच्छा पढ़ा आज का SN2 मैकेनिज्म का। जैसे कहते हैं ना कि आपने स्मॉल ए से लेके स्मॉल जेड तक कुछ भी नहीं छूटा है, हर चीज अपन ने पढ़ ली है। और अगर इसको आपने पढ़ लिया तो मतलब आप परफेक्ट हो गए हैं SN2 मैकेनिज्म में। तो एक दफा अपन हैव अ लुक फास्ट ऑन द मैकेनिज्म, जल्दी से अपन लुक करते हैं उसके ऊपर एक दफा और अपन उसको रिवाइज करते हैं क्लास खत्म होने से पहले। अगली क्लास में अपन SN1 मैकेनिज्म उठाएंगे, लेकिन SN1 मैकेनिज्म उठाने के लिए आपको ये रिवाइज होना बहुत जरूरी है, जब भी SN1 मैकेनिज्म आपको समझ में आएगी, क्योंकि 2 मैकेनिज्म में एक पढ़ ली है, अगली क्लास में पढ़ी जाएगी। मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन is of 2 types. One is SN2 nucleophilic substitution bimolecular, where 2 stands for second order kinetics, mean the rate of reaction depends upon the concentration of both alkyl halide as well as the nucleophile. In the mechanism nucleophile आएगा, आके हेलो अल्केन से जुड़ेगा जो कि टेट्राहेड्रल होगा, 3D में रिप्रेजेंट होगा, एक सॉलिड वेज डैश वेज और 2 प्लेन में होंगे। जब वो आएगा तो वो चाहेगा कि जरा सा फ्री रहे, तो वो उल्टी तरफ से आएगा, बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट आएगा जो कि हाईली अनस्टेबल होगा क्योंकि उस कार्बन से 5 बॉन्ड जुड़े हैं और वो प्लेनर होगा, वो फौरन ब्रेक होकर हमें प्रोडक्ट देगा जो कि अगेन टेट्राहेड्रल है, लेकिन वो इसका मिरर इमेज जैसा है। पूरा कॉन्फ़िगरेशन उल्टा हो गया और बढ़िया एग्जांपल डिपेक्ट हुई थी, जैसे कि एक अम्ब्रेला लिया खड़ा है कोई और वो पूरी की पूरी उल्टी हो गई, एक स्ट्रॉन्ग या बहुत तेज हवा चल रही है जहां वहां पर। बस उसके बाद हमने ये सब हो गया। फिर हमने बताया कि एक ही स्टेप में ये रिएक्शन हो रहा है, जहां पर हेलो अल्केन हेलो हट रहा है वहीं पर न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, तो वो एक ही स्टेप में होता है, एक साथ होता है, एक स्टेप में होता है। इंटरमीडिएट नहीं बनता, ये सब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में ध्यान रखोगे, इंटरमीडिएट नहीं बनेगा। जैसे ही कार्बन और न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड बनेगा ओसे ऐसे ही कार्बन और हेलो एटम का जो बॉन्ड है वो छूट मतलब लीव करेगा। सबस्टेट और प्रोडक्ट दोनों टेट्राहेड्रल है, लेकिन जो ट्रांजिशन स्टेट है वो प्लेनर है और उसके अंदर तीनों हाइड्रोजन एटम जो है वो एक ही प्लेन में है। न्यूक्लियोफाइल उसमें से निकल रहा है, आ रहा है, सॉरी जुड़ रहा है, और हेलो एटम उसमें से हट रहा है। और ये सबसे क्रीम बात, इट अकर्स बाय इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, घेरे अंडरलाइन कर चुके हैं आप लोग और उसकी एग्जाम्पल भी लिख चुके हैं, ये भी लिख चुके हैं वो अनस्टेबल क्यों है। फिर कॉन्फिगरेशन का मतलब भी आप समझ चुके हैं बहुत अच्छी तरह। कार्बन के आसपास जो ग्रुप्स लगे होते हैं उनका जो अरेंजमेंट होता है, डिफरेंट टाइप का जो अरेंजमेंट होता है ग्रुप्स का कार्बन के आसपास, उसे कहते हैं कॉन्फिगरेशन। और इसकी बढ़िया एग्जांपल हमने दी थी जो अपन की SN2 मैकेनिज्म की एग्जांपल थी, वो मैंने डिपेक्ट करी थी एक हेलो अल्केन से ही करी थी, मतलब अलग अलग हेलो ग्रुप लगे हैं, उसको मिरर इमेज जब बताया था कि ऐसा मिरर इमेज होता है, ऐसा ही इन्वर्ट हो जाते हैं ग्रुप, जैसे कि यहाँ हो रहा है वैसे ही SN2 में इन्वर्ट हो जाते हैं। फिर हमने ये सब करके फिर हमने लास्ट चीज जो बताई थी कि न्यूक्लियोफाइल जब आता है तो उसको जगह चाहिए होती है, उसको बल्कि ग्रुप से बहुत चिल आती है, इसलिए सबसे बेस्ट CH3Cl है और सबसे बुरा 3 डिग्री है, इसीलिए ऑर्डर 3 डिग्री हैलाइड जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है हेलो मतलब अल्काइल हैलाइड्स की टुवर्ड्स SN2 वो CH3Cl सबसे अच्छा, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। मैं मान के चलूंगी कि इससे बढ़िया एक्सप्लेनेशन बहुत ही मुश्किल है कोई देगा आपको SN2 मैकेनिज्म में, तो आप नहीं भूलेंगे कि आप लाइक करेंगे वीडियो, बहुत अच्छी तरह याद रखेंगे ये बात। सबको जो जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको अभी भी अगर आपने नहीं बताया है, आप अपने सारे जो फ्रेंड सर्कल है सब में बताएंगे, शेयर करेंगे कि हेलो अल्केन हेलो अरीन चल रहा है और इस लेवल का चल रहा है। और अगर अभी तक सो रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो 101% चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और एंजॉय करेंगे लर्निंग विद DAC classes with Dr. Amina HOD Chemistry. Bye bye. With this quote, I want to finish today's class.
डोंट फॉरगेट टू कम टू द नेक्स्ट क्लास पॉजिटिवली, बिकॉज वो SN1 मैकेनिज्म की होगी. ऑल द बेस्ट. बाय बाय माय डियर चिल्ड्रन.